Hi students, welcome to ILM College page once again. I hope you are making best use of your time at your home. This is the time where you can cover up each and everything that was missed out. Students, in the first lecture, I talked about correction of verbs, and most importantly, I talked about 4 different tenses. Today again, I am going to tell you about the rest of the tenses. Number 1, past indefinite. Students, one thing that I told you in the previous lecture, and one thing that you need to always keep in mind is you need to find out the clue words. This is the most important thing, to find out a clue word in a tense or a sentence. The first tense we are going to do today is past indefinite. What are the different clue words for past indefinite tense? Okay, number 1, you need to listen that this is a tense in which we always use second form of the verb. Second form of the verb. The clue words for past indefinite tense are: number 1, yesterday. Number 2, previous day. Number 3, last morning, last evening, last year, last month, last week. Same applies to previous also. Previous month, previous year, previous night. ठीक है, तो ये 3 आपके मेजर हो गए आपके क्लू वर्ड्स. नंबर 1, yesterday. नंबर 2, last day, last morning, last week, last month, last year. और नंबर 3, previous month, previous year or previous night. Just for an example, I am giving a sentence and you can spot the clue word first and then you can apply the verb exact. The sentence is: Pakistan cricket team dashed to India last year. The options are: go to India last year, went to India last year, had gone to India last year, or will go to India last year. Of course, this is the sentence in which we spotted one thing, that is last year, and last year tells us that only the second form of the verb will be applied in the blanks. Pakistan team went to India last year. Take another sentence: he dashed to school last morning. तो लास्ट का वर्ड आपने स्पॉट कर ली तो आपको पता है कि आपने ब्लैंक पे क्या लगाना है. इट विल बी सेकंड फॉर्म, वेंट. ही वेंट टू स्कूल लास्ट मॉर्निंग. अब एक टेंस जो पीछे दूसरा टेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का था. प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हम करते थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमारा ये था कि इज, एम, आर के साथ ING लगता है, और उसके क्लू वर्ड्स क्या थे? राइट नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज. दीज वर द क्लू वर्ड्स फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब पास्ट कंटिन्यूस के साथ क्लू वर्ड्स क्या होंगे? इन्हीं को ऑपोजिट कर ले. दीज डेज का क्या हो जाएगा? दोज डेज हो जाएगा. नाउ का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा. और इसी तरीके से एट द मोमेंट क्या है? एट दैट मोमेंट. एट द मोमेंट किस में तब्दील होगा? एट दैट मोमेंट में. आप वाज, वर के साथ ING लगाते हैं. द नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. Students, what I told you that you need to remember the clue words. The clue words for present perfect tense were already, yet, just now. These are exactly the same clue words for past perfect tense also. Remember, जब भी वो आपसे present perfect tense के बारे में पूछेगा, वहाँ पे आपको past perfect का ऑप्शन नहीं देगा, और जब भी वो पास्ट परफेक्ट के बारे में पूछेगा यकीनन वो प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन नहीं देगा. इसी से के साथ दूसरा, जैसे आपने पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ था कि हैज बीन प्लस ING, और उसके क्लू वर्ड क्या थे? सिंस और फॉर. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के थे. इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी यही क्लू वर्ड्स हैं, लेकिन आपने याद रखना है जब उसने आपसे प्रेजेंट परफेक्ट का पूछना है उस वक्त पास्ट परफेक्ट का नहीं पूछेगा, और जब पास्ट परफेक्ट का पूछना है उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं पूछेगा. ठीक है, अगर ये आ जाए सेंटेंस: ही डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2009,
तो अगर उसने आपसे पास्ट परफेक्ट का पूछना है तो फिर नीचे ऑप्शन आपके पास हैड बीन का ऑप्शन होएगा। आपने याद रखना है कि आपने सेंसिबली आपने चूज करना है वो वाला टेंस जो उसने पूछा है। ठीक है, अगला टेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसके क्लू वर्ड्स कौन कौन से हैं? रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, जैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट के लिए येस्टरडे का वर्ड यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपने प्रीवियस का यूज किया और लास्ट का वर्ड यूज किया। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए आपने याद रखना है कि हमेशा टुमारो का वर्ड, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट इवनिंग, द नेक्स्ट ईयर, ये वाले वर्ड जो हैं ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के क्लू वर्ड्स होंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए टुमारो, नेक्स्ट के साथ कोई भी वर्ड आ जाए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, ये कोई भी वर्ड आ जाए ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इसके साथ आपने विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। रिमेंबर, विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही डैश टू लाहौर टुमारो। तो यहाँ पे हमने क्लू वर्ड कौन सा तलाश किया? टुमारो का क्लू वर्ड हो गया। और अब हमें यकीन है कि विल और शैल के साथ हमने पहली फॉर्म यूज़ करनी है, क्लू वर्ड्स टुमारो। तो ही डैश टू लाहौर टुमारो, तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू लाहौर टुमारो। ठीक है, ये टुमारो ने हमें बताया कि यहाँ पे विल गो लगेगा। ठीक है, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे आप आइए, आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स याद रखें कि ये कंजंक्शन है, ये वर्ड कंजंक्शन है और बहुत दफ़ा ये आ चुका है। इस वर्ड को कहते हैं लेस्ट, LEST, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या है? ऐसा ना हो। लेस्ट वो वाला वर्ड है जिसको अगर हम कंजंक्शन दरमियान में आ गया और हमने देख लिया तो हमेशा याद रख लीजिए। बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि जहाँ पे लेस्ट आ गया आपने ये जान लेना है कि लेस्ट को हम लड़की तस्वर कर लेते हैं। लेस्ट को हम क्या तस्वर कर लेते हैं? एक लड़की तस्वर कर लेते हैं जो शादीशुदा है। और शादीशुदा लड़की जो हमेशा है वो अपने हस्बैंड के बगैर नहीं रहती। तो लेस्ट अगर बीवी है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? शुड। ठीक है, तो याद रख लें, याद रख लीजिए ये सेंटेंस, इसके अंदर क्लू वर्ड अगर आपको लेस्ट मिल जाए तो हमेशा सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपने लेस्ट के साथ क्या लगाना है? शुड। वॉक केयरफुली lest you dash fall, walk carefully lest you dash fall। तो क्या आएगा? walk carefully, lest आ गया तो lest के साथ हमेशा हमने क्या लगाना है? should। walk carefully lest you should fall। ठीक है, मतलब क्या कि इस सेंटेंस के अंदर जब हमने lest देख लेना है तो हमें पता चल जाना है कि ये किसके साथ क्या लगेगा? should। और जब भी आप lest को देखेंगे, जब भी आप किसी सेंटेंस में लेस्ट देखेंगे उसी वक्त लेस्ट को बोलेंगे, ओ लेस्ट भाई तेरा शुड किथे वे। ठीक है, दिस इज इट। अगला सेंटेंस उससे भी ज़्यादा अहम, इसको हम ये बेसिकली 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं, इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर इफ़ कंडीशन के साथ कोई सेंटेंस शुरू होए, या दरमियान के अंदर इफ़ हो, या स्टार्ट इफ़ के अंदर हो। पहली कंडीशन जो इफ़ की है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट विद फ्यूचर इंडेफिनिट। उसकी मिसाल क्या है? अब क्लू वर्ड इसके अंदर आपने कैसे ढूंढना है? क्लू वर्ड ढूंढने का बड़ा आसान तरीका है, आपके सामने अगर इफ़ वाला सेंटेंस आ जाए तो ये उसका क्लू है। आगे उसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में आपको बताने लगा हूँ, इफ़ सेंटेंस अगर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपका पहला उसका क्या होएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे अगर आप सेंटेंस है अगर वो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लेंगे? इफ़ ही वर्क्स हार्ड, कॉमा ही विल पास। ठीक है, ये इफ़ कंडीशन की पहली होगी कि पहले हिस्से में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्क्स आया, वर्क्स हमें बता रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरे हिस्से में हमने क्या अप्लाई करना है? विल विद फर्स्ट फॉर्म। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। दिस इज फर्स्ट इफ कंडीशन। सेकंड इफ कंडीशन, सेकंड इफ कंडीशन के अंदर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, यानी कि सेकंड फॉर्म is followed by would plus
फर्स्ट फॉर्म। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। अब आ गए हम तीसरी इफ कंडीशन की तरफ। तीसरी इफ कंडीशन भी उसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपका पास्ट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट हमें पता है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो आगे आपने कॉमा के बाद ही वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। सो देयर आर थ्री इफ कंडीशंस। पहली फ्यूचर इंडेफिनिट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। दूसरी इफ कंडीशन कौन सी है कि पास्ट इंडेफिनिट कॉमा के बाद वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। और तीसरी इफ कंडीशन क्या है कि अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट परफेक्ट है, तो आपने याद रखना है कि आगे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। दिस इज वन सेंटेंस। अगला सेंटेंस है जिसके अंदर सेंटेंस स्टार्ट ही होएगा दो वर्ड्स के साथ, हार्डली और स्केर्सली। हार्डली और स्केर्सली याद रखें बेटा, याद रख लें, पल्ले से बांध के याद रख लें। इन दोनों के साथ जो कंजंक्शन वर्ड है वो व्हेन का है। हार्डली हैड ही क्रॉस द रोड व्हेन अ ट्रक क्रॉस्ड हिम। तो हार्डली के साथ स्टार्ट हुआ, इसके फॉर्म बाद आपका ऑक्सिलरी हैड आया। हार्डली हैड ही क्रॉस्ड द रोड व्हेन, हार्डली हैड ही क्रॉस्ड द रोड व्हेन द ट्रक क्रॉस्ड हिम। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि हार्डली वाले सेंटेंस इनके फौरन बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आपका हैड का आएगा, तो दरमियान के अंदर जो कंजंक्शन वर्ड आएगा वो व्हेन का होएगा। हार्डली हैड ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रक क्रॉस्ड हिम। ठीक है, हैड और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। अगला जो सेंटेंस है उसके अंदर भी आपने याद रखना है कि पहले हिस्से के अंदर आपका पास्ट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से के अंदर बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। बड़ा ही मशहूर सेंटेंस है, बड़ा ही फेमस सेंटेंस है। जैसे हम कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हैड के साथ थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। इसके अंदर जो आपने याद रखना है वो ये है कि दरमियान के अंदर अगर बिफोर आया है तो इसका मतलब है कि पहले हिस्से के अंदर हैड के साथ थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स, एक काइंड रह गई है जो कि जिसको हम काश वाली जो है ना वो सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं वुड दैट के साथ या दरमियान में होता है एज इफ या एज दो। थ्री क्लू वर्ड्स, नंबर वन वुड दैट, नंबर टू एज इफ, नंबर थ्री एज दो। चूंकि यहां इशात होती हैं और कभी पूरी नहीं होती, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने ध्यान में रखना है, जो बात याद रखनी है, इनके साथ वर्ब भी वो होता है जो कि आमतौर पे नॉर्मली हम यूज नहीं करते। से फॉर एग्जांपल अगर हम वुड दैट की एग्जांपल लें तो वुड दैट की एग्जांपल क्या है? वुड दैट आई डैश अ किंग, वुड दैट आई डैश अ किंग। फोर ऑप्शन है, वॉज, वर, वुड, कुड। तो यहां पे आपने बेटा याद रखना है कि चूंकि ये वुड दैट से स्टार्ट हुआ है जिसका मतलब काश है, काश वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन क्या है? आई और ही, इन दोनों के साथ। वैसे तो नॉर्मली उसके साथ हम वाज लगाते हैं, लेकिन यहां पे हमेशा वुड दैट वालों के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे? वर। वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ किंग। और इसी तरीके से अगर हम एज इफ वाला सेंटेंस लें, जैसे ही वॉक्ड एज इफ ही वर ड्रंक, तो अब ही वॉक्ड एज इफ आ गया तो हमने ही के साथ क्या लगाना है? वर, ड्रंक। ये भी अब एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इनडेफिनेट है, जो श्योर नहीं है। तो जो अनश्योर चीजें होती हैं और एज इफ लग जाए तो उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? वर। वुड दैट आई वर अगेन, ही वॉक्ड एज इफ ही वर ड्रंक। इस तरीके से हमारे ये तीनों कंप्लीट हुए। वुड दैट, एज इफ, एज दो। याद रख लेंगे क्लू वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर प्रोनाउन सिंगुलर आए, आई और वी, आई और ही, तो इनके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे? Thank you very much for watching. Please like and share. Thank you very much.